Good afternoon, students. In this lecture, we are going to learn about the law of demand, which is very important question. As I have told in the last lecture, that it is very important. It is asked almost every year in the board exam, and all the three law, in fact, is very important. Alternatively, the laws has been asked in the exam. It consists of 8 marks, and 8 marks have been bifurcated. Say, for example, for introduction, you have to write 1 mark is there for introduction, then 1 mark is for statement of law, 1 mark is for table, 1 mark is for diagram, and 1 mark is an explanation for diagram and table both. And then either they can ask an exception or they can ask an assumption. Whatever has been asked, you'll have to write, and it is for 3 marks. Okay, so let us start with the law of demand. Okay, now you all know that in demand we are learning about a consumer behavior, how consumer is behaving with reference to price and other factors. Other factors in the last lecture we have learned, other than price there are many more factors which influence the demand. Say, for example, income, price of substitute goods, price of complementary goods, taxation policy. So there are many factors, okay, other than price, which also influence the demand. Basically the most important factor that influence the price is demand. Okay, so let us start with the introduction. The law was introduced by Alfred Marshall. See, Alfred Marshall is a very famous economist in our economics book. So this law, the earlier law DMU, was also introduced by Alfred Marshall. This law has been also introduced by Alfred Marshall. In his book, the book's name is Principle of Economics, okay, which was published in 1890. So the law was introduced by Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in 1890. Now what does the law explains? Okay, so law explains the functional relationship. Okay, the law explains the functional relationship between price and quantity demanded. Okay, in the demand chapter we are learning about the consumer behavior, how consumer is behaving. Okay, so consumer demands according to the price. So when the price of a commodity increases, he demands less. When the price of a commodity decreases, he demands more. Okay, so in this इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना है? द लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने. उनके बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक है, उसमें उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किया था, जो पब्लिश्ड हुआ था 1890 में. ये दिस यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली. इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. ओके, अगर थोड़ा भी हो जाता है, लॉ है तो आपको एकदम अच्छे से लिखना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. 8 मार्क्स आपके हाथ में है, बहुत इजी है लॉ ऑफ डिमांड. ओके, मोर इजी देन डीएमयू. सो इनके बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी जो पब्लिश्ड हुई थी 1890 में. अभी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब प्राइस जो है वो फंक्शन है, सॉरी डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का. मतलब प्राइस तय करेगा डिमांड कितना है. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड. तो इसलिए बोला है फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. यू हैव टू मेंशन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो ये इंट्रोडक्शन था, बहुत ही इजी. आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? इंट्रोड्यूस किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने, उनके बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. 1 मार्क आपका एकदम इजीली आपको मिल गया. ओके, द सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ. ये लॉ स्टेट क्या करता है, ये लॉ क्या बोलता है? तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining equal, or you can also say constant. other things, what are the other things? see, हमने पढ़ा प्राइस और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, तो जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है तो उनको बोला other things remaining constant. तो सिर्फ क्या हमको लेना है? प्राइस देना है. तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी. यहाँ पे हमको क्या लेना है? प्राइस लेना है. बाकी जो फैक्टर्स थे, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है? कांस्टेंट है. तो हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना ज्यादा कमोडिटी का दाम रहेगा, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड से पहले आपको क्वांटिटी मेंशन करनी, क्योंकि हम डिमांड क्या करें? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितना कम कमोडिटी का दाम होगा, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें कुछ भी नहीं, यू कैन सी इट्स लाइक एन अपोजिट वर्ड्स. ये अपोजिट वर्ड्स यू हैव टू राइट एंड गेट द गुड मार्क्स, 1 मार्क्स. एंड इन द अपोजिट वर्ड्स व्हाट यू आर यूजिंग? प्राइस एंड डिमांड. हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड,
lower the price of a commodity, larger the quantity demanded. Very easy, you all can score 1 marks over here. तो वी हैव डन विथ इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ लॉ. अब ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए, आप इसमें कोई क्योंकि ये स्टेटमेंट है, यू ऑल कैन नॉट चेंज. ओके, इंट्रोडक्शन में यू ऑल कैन राइट ऑफ योर ओन, बट स्टेटमेंट शुड बी एज इट इज. इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना रहेगा. सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ. Now let us see the explanation of statement of law. Okay, statement of law and explanation both consist of 1 mark. So in statement of law you have to write statement of law considering the explanation. So what does explanation say? Other factors other than price मतलब income, prices of complementary goods, prices of substitute goods, taxation policy, change in taste preference, ये जो सारे factors है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है उसी को हमको यहाँ पे थोड़ा और एलॉबरेट करके इजी वर्ड में लिखा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, अगर कमोडिटी का दाम बढ़ता है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, डिमांड फॉर इट फॉल्स. तो अगर हम कंज्यूमर है, हमारा रैशनल बिहेवियर यही रहेगा कि अगर कोई भी कमोडिटी का दाम बढ़ता है तो हम उसका डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे. So if the price of commodity rises, the demand for it falls, and when the price of commodity falls, वहीं पे अगर उस commodity का दाम कम होता है, demand for the commodity rises. मतलब you all can see it's like an opposite words. किसके बीच में, price and demand के बीच में, कि अगर price of a commodity बढ़ता है तो demand कम होता है, and अगर price of a commodity कम होता है तो demand बढ़ता है. So it is that simple. ओके, thus there is an inverse relationship. डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा. thus there is an inverse relationship between price and quantity. You have to mention quantity demanded. So we have done with the statement of law. Symbolically how it can be written, D means it is in demand, dx, x means commodity, is equal to f, f means function, in the bracket px. तो demand of a commodity is a function for the price of commodity. So D is equal to demand, x is equal to commodity, f is equal to function, and px is equal to price of a commodity. जो symbolically लिखा है, dx is equal to f और bracket में px. This also you have to write. Okay, you have to score good marks. Means see, whatever you are writing, okay, it's matter, because if you are giving 100% in the law, if you are writing exact, then you will get 7 marks. Last to last in the law you are getting 7 marks, and laws are scoring as compared to other answers. Okay, so try to write and go with the textbook. textbook से ही पढ़ो, क्योंकि टीचर्स जो होते पेपर चेकर वो कहीं के भी आते हैं तो वो अपने पास क्या लेके बैठते हैं, टेक्स्ट बुक लेके बैठते हैं. तो इसीलिए आप जब भी लॉ लिख रहे हो, आई एडवाइस यू ऑल टू गो विद द टेक्स्ट बुक. ओके, सो वी हैव डन विद द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. नाउ लेट अस सी अजम्पशन. जितने भी हम लॉ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, इसमें दो चीज रहती है. अजम्पशन मतलब मान के चलना है, एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ काम नहीं करता है. ओके, ये लॉ पढ़ने के लिए हमको कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा, कुछ मान के चलना पड़ेगा. सो दीज आर द अजम्पशंस एंड इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 3 marks. ओके, द फर्स्ट अजम्पशन इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. वो बोल रहे हैं कि जो एक कंज्यूमर का, एक इंडिविजुअल का इनकम है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ने भी नहीं वाला, कम भी नहीं होने वाला है. तो हमको ऐसे क्यों मानना है, क्योंकि अगर उसका इनकम चेंज होता है तो डिमांड चेंज होगा. ओके, तो ये लॉ पढ़ने के लिए हमको मान के, क्योंकि हमने क्या बोला था, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हमको अदर फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मतलब कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तभी ये लॉ हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, तभी इस लॉ को हम पढ़ सकते हैं. तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम मतलब कंज्यूमर का, इंडिविजुअल का इनकम नहीं चेंज होगा. अगर उसका इनकम बढ़ता है या कम होता है तो डिमांड भी चेंज होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. इसलिए वी हैव टू अज्यूम दैट एन इंडिविजुअल इनकम हैज अ कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम. द सेकेंड इज प्राइस ऑफ substitute goods remain constant. Substitute, you all know that it is like an enemy of each other's commodity. So they are saying that price of substitute goods also remain constant. There is no changes in the price of substitute goods. It means that ना तो टी के प्राइस में कोई चेंजेस है, ना तो कॉफी के प्राइस में कोई चेंजेस है. अगर टी और कॉफी
या आप you can take any example, sugar, jaggery, or you can take say for oil, and if you are taking any example, okay, substitute, they should be substitute, मतलब अगर ये नहीं तो ये प्रेफर करेंगे, ऐसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। दो कमोडिटी रहते हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन, एंड दोनों एक ही, जैसे टी एंड कॉफी बोथ आर बेवरेजेस, you can see oil it is used for consumption, both are oil, तो दोनों की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर एक का भी प्राइस चेंज होता है तो डिमांड बदल जाएगा। हमने इसीलिए पहले ही स्टेटमेंट ऑफ लॉ में पढ़ा था कि अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए हमको अज्यूम करना है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। The third is price of complementary good also remain constant. If there is changes in the price of complementary goods, the demand will change and the law will not be applicable. So complementary goods we all know they are like a friend to each other, okay, like car and fuel, pen and ink, many more example. तो दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के जो प्राइजेज है, जो गुड्स के दाम है ना, वो कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, देन फोर्थ है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन, ऐसा होता नहीं है, ये सब होगा नहीं, लेकिन हमको मान के चलना है। ऐसे नहीं होगा कि लेवल ऑफ इनकम सेम ही रहने वाला है, लेवल ऑफ इनकम चेंज होगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड सेम होने वाला है, वो चेंज होगा, लेकिन ये लॉ पढ़ने के लिए हमको ऐसा मान के चलना है। ओके, देन नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये बोल रहे हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ देयर इज चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। इसलिए वी हैव टू अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, उसमें कोई चेंजेस होने वाली नहीं है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, देन द फिफ्थ इज नो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो no expectation about future changes in the price, मतलब an consumer, an individual does not expect any changes in the future regarding the price of a commodity, because if we expect then there is a change in the demand, and ये लॉ पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, अज्यूम करना है कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट, तो उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि आगे चल के इसका दाम कम होने वाला है या बढ़ने वाला। अगर वो एक्सपेक्ट करेगा तो डिमांड चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट देयर इज नो फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइसेस। ओके, देन द सिक्स्थ पॉइंट इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन। कंज्यूमर इंडिविजुअल के जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होने वाला है, हैबिट जो आदत है वो चेंज नहीं होने वाला, प्रेफरेंस जो वो प्रेफर करता है, जो कमोडिटी उसको अच्छी लगती है वो ज्यादा परचेस करता है, डिमांड करता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। फैशन भी में भी कोई चेंज, अगर चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा। सो देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन। Okay, then there is no change in taxation policy. The government charges taxes to an individual. Okay, तो उसमें भी कोई changes नहीं होने वाला। अगर changes होगा तो demand में भी changes आएगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक में it is given in the different formats. So first is change in level of income, C, then prices, दो में आपको prices लेना है, उसके बाद no 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 ऐसे करके 7 points है। तो पहले C, देन प्राइजेस, देन नो नो। अभी नो नो में क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस, चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। ऐसे करके आपको याद रखना है, टेक्स्ट बुक में यही दिया है कि देयर इज नो चेंज इफ देयर इज चेंज। बहुत ईजी है, बट इफ यू वांट एलॉबरेशन, व्हेन आई विल बी टेकिंग एक्सेप्शन आई विल बी एलॉबरेटिंग जस्ट वंस। ओके, फॉर देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, 50%, 60%, 70%, all students are not equal. So I want each and every student should understand each and every concept, each and every word properly. That's why I elaborate. So if I'll feel like elaboration, I'll be elaborating in exception, but it's very easy. Okay, it is as same as given in the textbook. You have to just read it. So we have done with the statement of law, we have done with the assumptions. Now let us see the demand schedule. Okay, this schedule is asked for 1 marks. Very easy. क्या करना है, 50, 40, 30, 20, 10। बच्चे कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं। पहले में आपको लिखना है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का दाम। ओके, प्राइस। दूसरे उसमें डिमांड, प्राइस, डिमांड। आगे पीछे क्या लिखना, अभी प्राइस है तो कमोडिटी का, डिमांड है तो क्वांटिटी। प्राइस, कमोडिटी, डिमांड, क्वांटिटी। एक्स मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सिंबल। ओके, देन यहाँ पे एक्स इन केजेस। तो जब 50 रुपीज था, ओके, जब 50 रुपीज दाम था, से फॉर एग्जाम्पल टमाटो ले लो, एप्पल ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जब 50 रुपए था तो कितना डिमांड किया रैशनल इंडिविजुअल कंज्यूमर ने, 1 किलो। दाम कम हो गया, 50 से कितना हो गया 40, तो कितना डिमांड किया, डिमांड देखो बढ़ गया 2 kg। फिर जब 30 था तो 3 kg, 20 था तो 4 kg। एंड जैसे जैसे आप देखोगे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है हमको, इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, डिमांड एंड प्राइस।
it's very easy. I'll say again, and 8 marks is in your hand and it is asked in the board exam. 50, 40, 30, 10, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Like this way you have to write. If you all find any difficulty, आपको याद रखना डिमांड 1, 2, 3, 4, 5. उसका उल्टा लेना है 50, 40, 30, 20, 10. सी एग्जाम ऐसा होता है. सी अगेन स्टूडेंट गेट कंफ्यूज फॉर सिंपल, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट रिमेंबर. तो सबको लॉजिक के साथ लगा के पढ़ना है. एग्जाम में आप कभी भी नहीं भूलोगे. नाउ लेट अस सी द टेबल. As shown in the table, when price of a commodity X, मतलब X, you all take any commodity, apple, tomato, anything, okay, is 50, quantity demanded is 1 kg. अब आपको इसमें भी क्या लिखना है जो आपने इधर देखा कि 50 रुपए था तो 1 kg. When price falls from 50 to 40, दाम जब 50 से 40 हुआ तो डिमांड राइज हो गया, डिमांड बढ़ गया, 1 से 2 kg हो गया. सिमिलरली एट द प्राइस ऑफ 30, क्वांटिटी डिमांडेड 3 kg. एक एक के बारे में आपको लिखना है. सिंपल लैंग्वेज में आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, गेट द मार्क्स. When price falls from 20 to 10, quantity demanded rises from 4 to 5. Okay. Thus, price falls, demand rises. तो क्या देखा? दाम गिरा, डिमांड बढ़ा. Price rises, दाम बढ़ा, डिमांड गिरा. किसका? Commodity का. Okay. So this was the schedule. Now let us see the diagram. Diagram for the law of demand. Okay. So when it was 50. So how many kg we demanded? 1 kg. When it was 40, how many kg we demanded? 40. When it was 30, we demanded 3 kg. Okay, then when it was 20, we demanded 4 kg. When it was 10, we demanded 5 kg. Okay. Sorry, it will come here. You have to make it properly, like this way, straight रहेगा. So this is a demand curve DD, which is known as demand curve, and which slopes downward. कैसे slope जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है इसलिए डाउनवर्ड जा रहा है. अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो अपवर्ड. सप्लाई का आप देखोगे लॉ ऑफ सप्लाई में उसका जो कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. यहाँ पे इनवर्स है इसीलिए डाउनवर्ड हो रहा है. डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे याद रखना है आपको. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो इसके लिए आपको 1 मार्क है. सी इट्स वेरी इजी. फॉर दिस यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स. यू हैव टू राइट द प्राइस. ओके, y axis में there will be price and x axis में there is quantity demanded. You have to write 0. So this is the curve. Now you have to write क्या क्या है. x axis में demand for a commodity ये रहा. y में price of a commodity. dd क्या है? demand curve जो कैसे slope कर रहा है? downward. क्यों downward slope कर रहा है? क्योंकि inverse relationship है between price and quantity demanded. From left to right it shows inverse relationship between price and quantity demanded. कैसे relationship price and quantity? सो 1, 2, 3 पॉइंट में आपको इस ग्राफ को मेंशन करना है. देन उसके बाद आपको कर्व को मेंशन करना है 4th पॉइंट में कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड. व्हाई इट स्लोपिंग डाउनवर्ड? बिकॉज इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. So both the explanation you have to give for 1 marks. So we have done with the law of demand. It's very easy. In the next lecture we'll be going with the exception of law of demand. Exception means ऐसे कुछ केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. मतलब प्राइस बढ़े या प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड क्या होगा? कम नहीं होगा. ऐसे कुछ केसेस है जहां पे प्राइस कम होगा तो भी डिमांड नहीं बढ़ेगा. तो कुछ ऐसे केसेस है जो एक्सेप्शंस में आते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट एक्सेप्शंस एंड एलॉबरेशन ऑफ अजम्पशन आई विल बी गिविंग इन 1 word with just reading. Okay, so we have done with the law of demand. In the next lecture, we'll be going with exception. Thank you for today's lecture. If you all have any doubt, you all can ask me. Thank you.